Hello students of class 11th. I welcome you in today's English lecture. In the previous lecture, we have studied about the poem A Photograph. Today, I will continue it with its second part. The lines are: some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed up for the beach. This is UP up, not us. The sea holiday. In these lines, the poetess Shirley Tolson has tried to explain the time when her mother was a young 12 years old little girl and she had a photograph, and that photograph, when she would see after 20-30 years, how happy she would be and how she would feel, and talk to Betty and Dolly, her cousins. In these lines, the poet stops looking at the photograph and recalls what her mother used to say about the photograph. The poetess isn't sure whether it was 20 years after the photograph was taken or 30 years after it, but she remembers her mother telling her to look at how the cousins called Betty and Dolly looked at that young age. The poetess' mother also asked her to look at how their parents had dressed them up for a visit to the beach. Perhaps the plan to take the photograph had been there all along. अब बच्चों, इस लाइन में जो कवित्री हैं, ये पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन में पोएट लिखा हुआ है, इसको आप पोएटेस कर दीजिएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। और यहाँ ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, ड्रेस्ड अस ने। इन 4 लाइनों में पोएटेस कहना चाहती हैं कि अब उनकी माँ जो इस फोटोग्राफ में दिखाई पड़ रही हैं, अब कवित्री उनको देखना छोड़ करके ये सोचने में लग गई हैं कि लगभग 20 या 30 वर्ष पहले उन्हें ठीक से याद नहीं है कि उनकी माँ उस फोटोग्राफ को देख करके किस तरह से अपने अनुभव अपनी बेटी को बताती थीं। वो बड़ी खुश होती थीं उस फोटोग्राफ को देख करके और कहती थीं कि देखो मेरी कज़न बेटी और डॉली कितनी अच्छी, प्यारी और छोटी लग रही हैं उस समय, जिस समय की ये फ़ोटो खींची गई है। और वो ये भी कहती हैं कि हमारे माता पिता ने हमें कितनी अच्छी तरह से तैयार किया था उस समुद्र के किनारे जाने के लिए। ऐसा लगता है कि उनकी पहले से ही तैयारी थी कि बच्चों को वहाँ ले जाएंगे और वहाँ पर उनकी तस्वीर खींचेंगे। नेक्स्ट लाइन। Was her past, mine is her laughter, both vary with the labored ease of loss. In these lines, the poet says that her mother used to consider the photograph as an inroad to the past that she had left behind. On the other hand, the poetess
herself considered the memory of her mother, laughing as a relic of the past that she missed every day. In both cases, the memories of the past made the two women contemplating them feel disappointed as they tried hard to come to terms with what they had lost. So, most probably, in a very simple way, this photograph brings them back to the past as the poetess looks at the photograph and her mother looked at the photograph long back, and all the past memories they both recall and feel very happy and satisfied with her mother. But today, as the poetess has lost her mother, so now when she looks at the photograph, she remembers that she does not have her mother along with her. So she misses her very much. This is a feeling of sorrow towards the Shirley Tolson, that is the poetess. And in the other hand, her mother must be feeling very sad because she has lost her life very soon and left her daughter alone in this world just to remember her again and again. So, in the last lines, weary means both are worried and sad, both the women, the poetess and her mother. That is why poetess says the memories of the past made the two women contemplating them feel disappointed. That is, they are pressurized to feel disappointed because the moment they see the photograph, as they tried hard to come to terms with what they had lost, because that feeling again reveals that both of them are alone. The mother is lost and the poetess is alone. अब बच्चों, इस दो लाइन में ये कवित्री अपना दुख व्यक्त कर रही हैं और साथ ही साथ अपनी माँ का भी दुख व्यक्त कर रही हैं कि आज वो दोनों एक साथ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनकी माता जी का देहांत हो गया है और अब वो इस संसार में नहीं हैं। तो जो कवित्री है वो अकेली रह गई है। केवल वो फोटोग्राफ को देख करके पहले तो प्रसन्न होती है, लेकिन फिर वो अपने भूतकाल में चली जाती है जब उसकी माँ उसके साथ थी। उसके माँ के साथ वो कितना प्रसन्न रहती थी और कभी भी किसी भी प्रकार की उनको चिंता नहीं रहती थी। तो इसीलिए ये लाइनें कह रही हैं कि जब माँ इस फोटोग्राफ को देखती थी तो वो अपने उस समय में चली जाती थी जब ये फ़ोटो खींची गई थी, क्योंकि उस समय वो अपने दोनों कज़न्स के साथ बहुत प्रसन्न नज़र आ रही थी। और कवित्री कहती हैं कि मैं जब इस फ़ोटोग्राफ को देखती हूँ तो मैं पहले तो प्रसन्न होती हूँ माँ को देख करके, लेकिन फिर मैं भी अपने भूतकाल में चली जाती हूँ और उसके बाद जब वो सारी बातें मुझे याद आने लगती हैं तो मैं मजबूर हो जाती हूँ दुखी होने पर। और उसी प्रकार से उनकी माँ भी मजबूर हो जाती थी दुखी होने को कि वो अब वैसा जीवन नहीं जी पा रही हैं। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstances there is nothing to say at all. Its silence silences. In these lines, the poetess says that
her mother has been dead for the past 12 years. That is the same number of years that was the age of her mother in the photograph she had been looking at. The poetess is able to think of her mother's death, but she has no words with which to explain how that death has affected her. The fact that the death has silenced her mother has also left her speechless. बच्चों, इन लाइनों में कवित्री ये बताना चाह रही हैं कि आज से 12 वर्ष पहले उनकी माता का देहांत हो गया और वो उन्हें छोड़कर चली गईं, और इस बात को वो रिलेट करती हैं फ़ोटोग्राफ से कि फ़ोटोग्राफ में भी मेरी माँ 12 वर्ष की ही नज़र आ रही हैं। तो दोनों में ये समय की समानता है। दूसरा, माँ जब छोड़ के चली गई तो बहुत सारे दुख पीछे छोड़ गई वो कवित्री के लिए, जिसको केवल कवित्री ही महसूस कर रही है। एक खालीपन उसके जीवन में और जो उत्सुकता, जो उन्मुक्ता थी, वो सब समाप्त हो गई है। ठीक उसी प्रकार से अब उसके जीवन में एक सन्नाटा वो छोड़ के चली गई हैं, और उस सन्नाटे में कवित्री बिल्कुल भी कुछ भी कहने योग्य नहीं है, यानी वो अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पाती शब्दों में। तो एक तरह से सन्नाटा पूरा उसके जीवन में पसर गया है। उसकी माता के जाने के बाद अब मात्र वो फोटोग्राफ एक माध्यम रह गया है दोनों के बीच का लिंक का, यानी दोनों के बीच को जोड़ता है। वो जब वो फ़ोटोग्राफ देखती हैं तो उनको अपनी माँ याद आती है और अपना भूतकाल याद आता है, जब वो माँ के साथ अच्छे दिन उन्होंने व्यतीत किए थे। तो बच्चों, अभी मैंने 3 स्टैंजास आपको बताया। इंग्लिश में इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है और हिंदी में भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दे दिया है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया हो तो आप इसको बार बार पढ़ें। पहले तो जो आपके स्क्रीन पे लिखा है वो लाइन्स उतारें और लाइन के नीचे उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको लिखें। और फिर जब नहीं समझ में आए, यदि ऐसा लगता नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे लेक्चर को बार बार सुने। 2-4 बार जब आप हिंदी में सुन लेंगे तो आपको इन लाइनों का अर्थ समझ में आ जाएगा, और एक्सप्लेनेशन को तैयार करें अपने आगे के क्लासेस के लिए। तो इसलिए आज के लिए इतना ही बस बच्चों, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।